Jai Jinendra, hello friends, welcome to Wings to Dreams. Myself Kushi Jain from JNU MSRC Jaipur. So in this video we will study about the catabolism of heme, that how this breaks down and what are the processes that involves, what is the system and what occur if it not occurs properly in our body. Okay, so let's start with the topic. First of all, heme is the component of hemoglobin. Hemoglobin breaks down into two parts, heme and globin, which are break down. ओके सो एंड प्रोडक्ट जो होते हैं हीम कैटाबोलिज्म के आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और ये जो हीम का कैटाबोलिज्म होता है वो आपके मैक्रोफेजेस के अंदर होता है दैट आर द पार्ट ऑफ योर आरई सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर. 6 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो ब्रेक डाउन होता है पर डे, वो कितना आपका बनाता है 250 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन इट विल फॉर्म. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर. सो हीम in the macrophages is break down in the biliverdin, and this biliverdin with the help of the enzyme biliverdin reductase converted into the bilirubin. heme oxygenase की मदद से इसमें convert होगा और biliverdin again converted to bilirubin. Now this bilirubin binds to albumin protein in the blood and forms bilirubin albumin complex. Okay, and this bilirubin albumin complex forms the send this bilirubin to the liver. Further, when this bilirubin reaches the liver, bilirubin it converts into bilirubin diglucuronide, and then into bilirubin diglucuronide to monoglucuronide, and then reaches to the bile. So this is how the bile forms. Okay, यानी कि ये आपके मैक्रोफेजेस से हीम का कैटाबोलिज्म हुआ, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बना, बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो गया लीवर के अंदर, फिर वो अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलीरुबिन बना डाइग्लूकोनाइड और मोनोग्लूकोनाइड के अंदर यूडीपी ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से. सो उस ये जो प्रोसेस है आपका वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है बाइल का. नाउ दिस can be further understand by this process. This is hemoglobin, heme and globin में पार्ट में डिवाइड हुआ. heme is converted into the bilirubin by the help of heme oxygenase enzyme. Okay, and यहाँ पे this biliverdin is converted to the bilirubin. biliverdin किस में कन्वर्ट हो रहा है, bilirubin में with the help of biliverdin reductase. You can see here biliverdin reductase. This is water insoluble. When this reaches with the help of binding to the blood, reaches to liver, this water insoluble protein converted into the water soluble protein known as bilirubin diglucuronide. This further via bile duct to intestine reach from bile duct to intestine. Okay, urobilinogen formed by the bacteria. अगर ये जो बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड बना है ये फिर कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, और ये क्या बनाएगा, यूरोबिलिनोजन, जो कि बैक्टीरिया से बनता है. अब आपके फेट इस पे डिपेंड करता है कि ये यूरोबिलिनोजन इसको फीसेस अगर बनाना है तो इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन, और अगर इसे यूरिन की फॉर्म में जाना है तो इट विल एक्सक्रीट इनटू द यूरोबिलिन, एंड सम अमाउंट of it is absorbed into the kidney. So this is all about the normal metabolism of the hemoglobin, कि हीम का कैटाबोलिज्म जो है इन सारे स्टेप्स में होता है. ओके, now it is the further basic representation of the diagram. You can see macrophages from blood to the liver, and then from the intestine to the kidneys, cells, and फॉर्म सम जो आपका स्टर्कोबिलिनोजन है, यूरिन है, टू द फीसेस की फॉर्म में वो जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है. नाउ अगर ये जो कैटाबोलिज्म है नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो होगा आपका हाइपरबिलिरुबिनीमिया. हाइपरबिलिरुबिनीमिया यानी कि बिलिरुबिन का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विच कॉजेज जॉन्डिस. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग. Icterus, it is also known as icterus. It causes yellow color of the skin, nail beds and sclera. Okay, so you can see whole of the sclera is yellowish. Okay, साथ के साथ आपके nail beds और skin इन दोनों का कलर भी ये येलो कर देता है. So this is what the yellowish discoloration of skin, sclera, nail beds and mucous membrane is the jaundice. So it's not a disease but a symptom of underlying disorder. jaundice जो होता है मोस्ट कॉमन से आप देखते हैं बच्चों के अंदर भी जो पीडियाट्रिक्स एज में होते हैं, so उनमें भी मोस्ट कॉमन होता है. So it is not a disease but it is a sign of a disease, कि जो डिजीज हुई है उसके बारे में ये आपको बताता है. फिर हम बताएं अगर नेक्स्ट, तो इट इज़ द हीमोलाइसिस. जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, हीमोलाइसिस होगा विच लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन. अगर ये बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं हो पाया, ठीक है, उसका एक्सक्रीशन कम हो गया, इट विल लीड टू द जॉन्डिस, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ, इट विल लीड टू द जॉन्डिस. यू कैन सी हियर
और अगर लीवर फंक्शनिंग एनहेंस है या बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो इट विल आल्सो कॉज दिस liver damage and bile duct obstruction leads to the jaundice. Now, if we say types of jaundice are two types, hemolytic and obstructive jaundice. Hemolytic jaundice यानी कि आरबीसी के ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हुआ. obstructive jaundice is when there is the obstruction of the bile duct, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है या जो अमाउंट है वो पास नहीं हो पा रहा है. ओके, सो hemolytic jaundice is liver can handle 3000 milligram of the bilirubin पर डे. नॉर्मल इज 300, इतना लीवर हैंडल कर सकता है. लेकिन अगर मैसिव हेमोलाइसिस होगा जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है कांट बी कंजुगेटेड, इंक्रीज बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल एंड यूरोबिलिनोजन इज इंक्रीज इनटू द ब्लड एंड द यूरिन. ओके, एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड इंक्रीजेस लीड्स टू जॉन्डिस. सो हेमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि बिलिरुबिन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लीवर के अंदर कि लीवर कांट हैंडल दैट. नॉर्मल इज 300 और वी कैन से 3000 मिलीग्राम तक हैंडल कर सकते हैं. लेकिन इससे ज़्यादा अगर हुआ तो बिलिरुबिन जो है वो कंजुगेटेड नहीं, अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन बाइल में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. ठीक है, और अगर वो ब्लड के अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा क्योंकि बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल और यूरोबिलिनोजन जो कंपोनेंट है वो ब्लड के अंदर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपका जॉन्डिस हो जाएगा. इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वेयर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट, what are the causes of the obstruction? That may be tumor of the bile stone, any kind of GI pain and nausea will happen to the patient, and patient will impart pale or clay colored stool अगर आ रही. इट मीन्स कि ट्यूमर हो गया है आपके बाइल के अंदर और बाइल स्टोन हो गया है. ओके, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन के साथ कंप्लेंट लेके आएगा पेशेंट. क्ले कलर स्टूल इज द सिग्निफिकेंट फीचर फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कैन लीड टू द लीवर डैमेज एंड इंक्रीज कंजुगेटेड बिलिरुबिन. ओके, लीवर डैमेज और बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा ये बढ़ा सकता है. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस आर हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस is what when there is a liver damage किन कंडीशन में cirrhosis और hepatitis is due to the viral infection and cirrhosis is what the alcoholics, the patient जो acute chronic alcohol होते हैं उनके अंदर अगर hepatocytes जो cells हैं वो ही डैमेज हो जाएगी तो bilirubin का level in blood due to decreased conjugated bilirubin not efficiently exported to the bile so diffuses into the blood, increase urobilinogen enterohepatic circulation, so urine is darker and stool is pale clay colored, AST and ILT are elevated and nausea and anoxia. So जब भी हेपेटोसाइट्स जो है वो डैमेज हो जाएगी, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो जाएगा पेशेंट को, तब ये चीज़ होगी यानी कि लीवर डैमेज हो जाएगा पेशेंट का. उसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर ट्रांसिएंटली इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा और यूरोबिलिनोजन का लेवल आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अब अगर आप खुद सोचिए कि इतना ज़्यादा बिलिरुबिन आपके ब्लड में है तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो हम करते हैं जिसके अंदर एल्केलाइन ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ये जो एंजाइम्स है SGPT SGOT भी इनको हम बोलते हैं, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलिसिटेट ट्रांसफरेज, और ठीक है तो ये जो है सीरम ग्लूटामेट पायरुविक एसिड ट्रांसफरेज, सो ये दोनों एंजाइम्स का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो गई है. एंड द पेशेंट विल हैव नोजिया एंड एनोरेक्सिया यानी कि भूख का ना लगना. जॉन्डिस इन द न्यूबॉर्न इज द मोस्ट कॉमन थिंग यू एवर हीवर्ड कि बच्चे को पीलिया हो गया है. ठीक है, न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, मोस्टली वी कैन से विद इन द 4 वीक उनको ये होता ही है. सो प्रीमेच्योर बेबीज ऑफन अक्यूमुलेट बिलिरुबिन ड्यू टू द लेट ऑनसेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, मैक्सिमम एक्सप्रेशन एट 4 वीक. एक्सेस बिलिरुबिन कैन कॉज टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी दैट इज कार्निक टेरस. ट्रीटेड विद द ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट कन्वर्ट्स बिलिरुबिन टू मोर पोलर कंपाउंड, कैन बी एक्सट्रेटेड इन बाइल विदाउट कंजुगेशन. ठीक है, तो जो भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर न्यूबॉर्न के अंदर क्यों हो रहा है जॉन्डिस, सबके अंदर क्यों कॉमन होता है, क्यों? क्योंकि उस स्टेज के अंदर जब बच्चे होते हैं तो प्रीमेच्योर बेबीज जो उनके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है बिलिरुबिन का. ये जो एंजाइम था हमारा बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से. सो इसकी वजह से उनके अंदर लेवल विद इन 4 वीक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है बिलिरुबिन का. एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन व्हाट ये टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी कॉज करता है, यानी कि ब्रेन के अंदर जो मेनिंजेस है वहाँ पर भी डिपोजिशन हो जाएगा एंड विल लीड टू कार्निक टेरस. ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्निक टेरस. ट्रीटेड विद द ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट बिलिरुबिन कन्वर्ट होता है टू मोर पोलर कंपाउंड एंड कैन बी एक्सट्रेटेड इन बाइल विदाउट कंजुगेशन. बाइल के अंदर इसको कर सकते हैं. सो यू कैन सी दिस द पिक्चर ऑफ द नियोनेटल जॉन्डिस पेशेंट ऑफ अ चाइल्ड.
Okay, it is very severe, so you must have to take care in this stage. कई बार न्यूरेटल जॉन्डिस की वजह से भी बच्चों की डेथ हो जाती है, सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस. सो इन दिस डायग्राम इज द डिपिक्शन ऑफ alteration of metabolism on heme. Hemolytic jaundice occurs by increased hemolysis leads to increased unconjugated bilirubin, whereas obstructive jaundice occurs न्यूरेटल jaundice क्योंकि bilirubin ट्रांसफरेंस एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, जिसकी वजह से ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसका लेवल इंक्रीज हो गया. Okay, after that, determination of bilirubin concentration. So how will you determine that bilirubin concentration? Vandenberg reaction से हम करते हैं. It is what कि conjugated bilirubin react करता है direct reaction, ठीक है. और अगर unconjugated bilirubin react कर रहा है hydrophobic and it reacts slowly, both conjugated and unconjugated react same in the methanol gives total bilirubin value. Subtraction of direct from total gives indirect. In normal serum only 4% is conjugated. SGPT, OT levels are elevated in hepatic jaundice. ALP levels are elevated in obstructive and YGT levels are elevated in chronic alcoholism. So Vandenberg reaction is basically a test we do for the estimation of bilirubin level. अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड बोथ. अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन है तो वो डायरेक्ट रिएक्शन देगा और अनकंजुगेटेड है तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, लेकिन दोनों का रिएक्शन सेम होती है कि टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू देते हैं जब वो मेथनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है. नॉर्मल सीरम के अंदर कितना होता है, ओनली 4% इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन. और साथ के साथ ये टेस्ट जब भी आप करोगे तो SGPT, OT हमेशा एलिवेटेड होंगे. ALP लेवल इन द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज ऑल्सो एल्केलाइन फॉस्फेटेज. और YGT का लेवल अगर क्रॉनिक एल्कोहलिक का पेशेंट है तो उनके अंदर होगा. नाउ दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स कंजेनिटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया के लिए, कि अगर होता है ऐसी कौन सी कंडीशन जिनके अंदर बच्चों के अंदर अगर बिलिरुबिन का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ गया तो इट विल लीड टू द सिंड्रोम्स. फर्स्ट इज क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम टाइप 1, ठीक है. क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम टाइप 1, इसके अंदर क्या होता है, डिफेक्ट इन द कंजुगेशन ऑफ द एंजाइम. ओके, ये सारे जो आने वाले हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज लर्न इट केयरफुली. डिफेक्ट इन कंजुगेशन, कंजुगेशन के अंदर डिफेक्ट हो गया, डेट इज क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम. एंजाइम कौन सा, यूडीपी ग्लूकोनाइन ट्रांसफरेज. अगेन दिस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपका कंजुगेशन डिफेक्ट हो गया. क्रिगलर-नाज़र यू कैन रिमेंबर इट बाय C2C, यानी कि डिफेक्ट इन कंजुगेशन एंड क्रिगलर-नाज़र. ओके, सो jaundice appear within 24 hours of life. Unconjugated bilirubin increases to more than 20 milligram per deciliter and children die first 2 years of life के अंदर ही चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है. सो कंजुगेशन के अंदर डिफेक्ट होता है इस एंजाइम का, जो कि आपने देखा अभी साइकिल के अंदर. और कितना 24 आवर के अंदर सिग्निफिकेंट जॉन्डिस आपको दिखेगा और कितना 20 मिलीग्राम से ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल हो जाएगा. एंड इट्स सो सैड बट या चिल्ड्रन कैन डाई विद इन फर्स्ट 2 years of life. If it is type 2 is usually less severe than type 1, but defect in bilirubin conjugation is also. But main change is what कि bilirubin की concentration यहाँ 20 मिलीग्राम से कम होती है, ठीक है. फिर थर्ड वन इज द गिलबर्ट्स डिजीज. गिलबर्ट्स डिजीज इट इज इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. डिफेक्ट इन द अपटेक ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन अपटेक ही नहीं हो पा रहा है, कंजुगेशन नहीं होगा, उसकी वजह से हेपेटिक क्लियरेंस जो है बिलिरुबिन की कम हो जाएगी. इट विल लीड्स टू बिलिरुबिन लेवल अराउंड 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड इट इज द एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन, बट या इट इज व्हाट ऑटोसोमल डोमिनेंट, सो इट कैन आल्सो occur in the patients. And fourth is the most common answer, Dubin-Johnson syndrome, you all have heard. So it is an what, autosomal recessive. That was Gilbert disease was autosomal dominant, it is recessive. Defect in excretion of conjugated bilirubin and increased conjugated bilirubin in the blood. Conjugated bilirubin का excretion बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्लड के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है. बिलिरुबिन डिपोजिटेड इन लीवर एंड अपीयर्स ब्लैक, ठीक है. सो बिलिरुबिन का लेवल लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसकी वजह से और ब्लैक. सो बेसिकली इन सब कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, बट द व्हाट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. सो इन केस ऑफ अबव कंडीशंस गिलबर्ट्स क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम टाइप 1 एंड टाइप 2 देयर इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन के डिफेक्ट हो रहा था एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से, बट हियर इन टाइप 1 इट इज मोर देन 20 एंड टाइप 2 इट इज लेस देन 20. थर्ड वन इज द गिलबर्ट्स डिजीज जहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था एंड इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, वेयर एज ड्यूबिन-जॉनसन मीन्स ऑटोसोमल रेसेसिव.
इट गिव्स डिफेक्ट, यहाँ पे जो डिफेक्ट है इन एक्सक्रिएशन, ओके, एक्सक्रिएशन में डिफेक्ट हो रहा है कंजुगेटेड बिलिरुबिन का, सो इट विल लीड टू द ब्लैक लीवर जॉन्डिस, लीवर का कलर भी पूरा ब्लैक हो जाएगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ bilirubin. Next is the rotor syndrome. Rotor syndrome is what? Bilirubin exercise is defective but no deposition in liver. ओके, बिलिरुबिन है, डिफेक्ट होगा लेकिन लीवर में कोई डिफेक्ट नहीं होगा उसकी वजह से. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजेनिटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया. नाउ कमिंग टू द एक्वायर्ड हाइपरबिलिरुबिनीमिया. एक्वायर्ड हाइपरबिलिरुबिनीमिया इज न्यूनेटल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. इट इज कॉज्ड बाय हेमोलाइसिस. आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से होगा हेमोलाइसिस. इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज हेमोलाइसिस, यूरोपिक ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेंस एक्टिविटीज लो, अगेन बिलिरुबिन लेवल इज लेस देन 5 एंड इट डिसअपियर्स बाय द सेकेंड वीक ऑफ लाइफ. ओके, सो ये जो होता है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ जो हो रहा है न्यूनेटल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं, हेमोलाइसिस बहुत ज्यादा हो जाता है बट the thing good is it disappears usually after second week of life. So this is the concise form of three of the disorders: Crigler-Najjar syndrome, Gilbert and Dubin-Johnson. Defect in the UDP gluconide transferase, severely reduced activity of the gluconide transferase, and there is abnormal transport of the conjugated bilirubin in the bilirubin into biliary system. Okay, biliary system यानी कि excretion में प्रॉब्लम आ रही ड्यूबिन जॉनसन में. सो C2 कंजुगेशन, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, यहाँ सीवियरली डिफेक्ट होता है. फिर इन सब की वजह से क्या होगा, इन क्रिगलर-नाजर और गिलबर्ट यही नहीं बन पाया तो अनकंजुगेटेड का बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा. यहाँ पे कंजुगेटेड बिलिरुबिन डिफेक्ट है, सो कंजुगेटेड बिलिरुबिन विल रेज्ड इन द ब्लड. और क्लिनिकल फाइंडिंग्स इज प्रोफाउंड जॉन्डिस इन केस ऑफ क्रिगलर-नाजर, बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2, यू नो, मोर देन 20 एंड लेस देन 20, very mild in case of Gilbert and moderate jaundice in Dubin-Johnson syndrome. Okay friends, so if woman has a bad disease, a true story. So porphyria is the condition and porphyria are the disorders which occur due to this. So thank you so much guys, and if there is any doubt or any query you can mention in comment. So please do like, share and subscribe to my channel if you have not yet, and I hope you all understand what I have said till now, the catabolism of heme, okay, the basic catabolism of heme, how it goes and what are its features. So thank you so much guys for watching this video.